ریاستی وزیر آبکاری श्रीनिवास गौड़ کے قتل کی سازش کو سائبرآباد پولیس نے بے نقاب کرتے ہوئے 8 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس سائبرآباد اسٹیفن رویندرا نے میڈیا کو بتایا کہ تحقیقات کے دوران پولیس کو اس بات کا انکشاف ہوا کہ وزیر کے قتل کے لیے 15 کروڑ روپے میں معاہدہ کیا گیا ہے۔ 23 فروری کو فاروق اور حیدر علی نامی شخص سچترا علاقے کے پاس ایک لاج میں تھے۔ 25 فروری کو وہ دونوں چائے پینے کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں ناگا راجو اور بعض افراد نے تعاقب کرتے ہوئے ان پر خنجروں سے حملے کی کوشش کی۔ وہ دونوں کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پیٹ بشیرآباد پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا۔ ملزمین کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ بعد ازاں تحقیقات کے دوران ناگا راجو نے بعض حقائق کا انکشاف ہوا۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ راگھویندرا راجو ایم روی اور مدھوسودن دہلی میں مقیم ہیں۔ سیل فون سگنلز اور لوکیشن سے معلوم ہوا کہ سابق رکن پارلیمنٹ جتیندر ریڈی کے سرونٹ کوارٹرز میں یہ لوگ ہیں۔ انہیں گرفتار کر کے حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ سابق رکن پارلیمنٹ کے ڈرائیور اور پی اے راجو نے ملزمین کو سرونٹ کوارٹرز میں پناہ دی تھی۔ اس طرح ریاستی وزیر श्रीनिवास गौड़ کے قتل کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ ఇందులో మనకి కొన్ని వెపన్స్ కూడా రికవర్ అయినాయి. ఇది చూస్తే ఇక్కడ మీరు ఒక పిస్టల్ ఉన్నది, ఒక 2 రౌండ్స్ అండ్ 9mm పిస్టల్ రికవర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అది రాఘవేంద్ర రాజు నుంచి. తర్వాత ఈ ఒక రివాల్వర్ కూడా 6 రౌండ్స్ మనకి మున్నూరు రవి నుంచి కూడా రికవర్ చేస్తాము. డిండిగల్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో చేసి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి మనము రిమాండ్కి ఈరోజు పంపించడం జరుగుతుంది. క్యాబినెట్ మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి హత్యకు వీళ్ళందరూ కూడా కుట్ర పన్నట్టు మనకి ఇది తెలిసి వస్తూ ఉన్నది. రాఘవేందర్ రాజు ఫరూక్తోని ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ అవుతాడు. మినిస్టర్ గారిని హత్య చేయాలని చెప్పి తర్వాత అది నువ్వన్నా చెయ్యి, లేకపోతే ఎవరైనా హైయర్డ్ అసాసిన్స్ మాకు కాంటాక్ట్ చేయిస్తే వాళ్ళతో చేయిస్తామని చెప్పి ఇదంతా కూడా ఒక కాన్స్పిరసీ వీళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు. ప్లాన్ చేసి ఎంటైర్ కాన్స్పిరసీకి ఒక 15 crores వరకు నీకు చెప్తామని మీకు ఇస్తామని వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. జితేందర్ రెడ్డి గారి పాత్ర ఏదైతే ఉన్నదో అది మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉన్నాము. కానీ మనకి ఇక్కడ ఒకటి పక్కాగా తెలిసి వచ్చేది ఏంటంటే జితేందర్ రెడ్డి పిఏ రాజు అండ్ ఈ డ్రైవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో థాపా వీళ్ళు కలిసి అక్కడ ఢిల్లీలోని సౌత్ ఎవెన్యూలోని షెల్టర్ ఇచ్చినట్టయితే మనకి క్లియర్గా బాగా తెలిసి వస్తూ ఉన్నది. وقف بورڈ کے رکن کے طور پر ذاکر حسین جاوید ایڈوکیٹ منتخب ہوئے۔ بار کونسل کے زمرے سے ان کا انتخاب عمل میں آیا۔ انہوں نے اس موقع پر انتخابی عہدیدار ایل شرمن کے ہاتھوں بورڈ کی رکنیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ذاکر حسین جاوید نے اپنے انتخاب پر اپنی والدہ، دوستوں، ساتھی ایڈوکیٹس بالخصوص صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وقف جائیدادوں کے تحفظ اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے وہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذاکر حسین جاوید، ایڈوکیٹ، بار کونسل ممبر، اللہ اس کے رسول کے صدقے میں جو آج تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے انتخابات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے، میں سب سے پہلے میری والدہ اور میرے دوست احباب اور میرے کو چاہنے والے اور میرے ساتھی ایڈوکیٹ بھائی بہنوں کو بھی میں شکر گزار ہوں۔ ان لوگ سب میرے لیے دعا کرے اور بالخصوصی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نخیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی میری جیت کے لیے دعا کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یہ شاندار کامیابی دی۔ یہ کامیابی سے میں اپنے فرض کو انجام دیتے ہوئے وقف بورڈ ممبر بن کر وقف کے جائیدادوں کو
तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए मैं ईमानदारी के साथ मेहनत से के साथ काम करूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे ताकत दे। अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुबम के इम्तहानात का नज़रसानी शुदा टाइम टेबल जारी किया गया है। जनरल और वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए प्रैक्टिकल इम्तहानात 23 मार्च से 8 अप्रैल तक होंगे। इनमें इतवार भी शामिल है। एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ और इन्वायरमेंटल एजुकेशन इम्तहानात 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को मुनक़िद होंगे। साल अव्वल का पहला पर्चा 22 अप्रैल को होगा। इन तमाम इम्तहानात के अवकात सुबह 9 बजे ta 12 बजे दोपहर होंगे। स्टाफ की कमी की वजह से जीएचएमसी साउथ जोन के प्लानिंग शुबे को तरक्याती कामों बशमूल सड़क की तोसी, नाला डेवलपमेंट और इमारतों के इन्हिदाम के मामले में काफ़ी ताख़ीर हो रही है। बताया जाता है कि मुख्तलिफ शोबेजात बशमूल टाउन प्लानिंग के शोबे में स्टाफ की काफ़ी कमी है। बेशतर तरक्याती प्रोग्राम इस वजह से काफ़ी सुस्त रफ्तारी से जारी हैं। ज़राए के मुताबिक साउथ जोन में होने वाले तरक्याती काम बशमूल स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान, नालों की तोसी, सड़कों की तोसी और दीगर कामों में स्टाफ की कमी की वजह से काफ़ी ताख़ीर हो रही है। साउथ जोन में तरक्याती कामों के हिस्से के तौर पर बेशतर अहम काम किए जा रहे हैं। इनमें हाल ही में मंजूरा काम भी शामिल हैं जो काफ़ी सुस्त रफ्तारी से जारी हैं। यूपी के इंतखाबात के अख्तिताम के बाद अंदरून एक हफ़्ता पेट्रोल की कीमत में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पर ख़ाम तेल की कीमत $110 फ़ी बैरल हो गई है। 2014 से पहली मरतबा पेट्रोल की कीमत में इतना भारी इजाफा हुआ है। 7 मार्च को यूपी असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले की रायदही होने वाली है और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। भारत पेट्रोलियम और HPCL फ़ी लीटर 5.7 रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। इस जंग का असर भी पेट्रोलियम अशिया की कीमतों पर पड़ा है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आखिरी मरहले की रायदही के बाद पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा होगा। काबीनी ज़ैली कमेटी ने फ़ैसला किया है कि आइंदा तालीमी साल से तमाम सरकारी स्कूल्स में पहली ता 8वीं जमात अंग्रेज़ी मीडियम मुतारुफ़ करने रियासती काबीना से सिफारिश की जाए। ये फ़ैसला काबीनी ज़ैली कमेटी के इजलास में किया गया। इस कमेटी की तश्कील सरकारी स्कूल्स में अंग्रेज़ी मीडियम मुतारुफ़ करने, फ़ीस को खानगी तालीमी इदारों में बाकायदा बनाने के लिए किया गया था। इसके इजलास में रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी के साथ साथ रियासती वज़रा तारक रामा राव, हरीश राव और दीगर ने शिरकत की। काबीनी कमेटी के इजलास में इस बात का भी फ़ैसला किया गया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इस सिलसिले में तबादला ख्याल करते हुए मुनासिब रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। अहदेदारों को मुनासिब इंतज़ामात करने के सिलसिले में हिदायत के बशमूल किताबों की इशाअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दाखिलों में इजाफे के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। 5वीं मरतबा रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन मुंतखब होने पर अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी को दरगाह हज़रत शाह खामोश में तहनीत पेश की गई। मोहम्मद नज़ीर अली मुतवल्ली जामा मस्जिद मुशीराबाद, मोहम्मद हुसैन अली बाबर, मोहम्मद अब्दुल मजीद आरिफ सिकंदराबाद मस्जिद जलाली, मोहम्मद जब्बार, अब्दुल कुद्दूस, सैयद मोहम्मद और दूसरों ने उन्हें तहनीत पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर ने मानेर रिवर फ्रंट टूरिज़म के कामों पर आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। पहले मरहले में महकमा सयाहत के कामों की तकमील के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ़ ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में आला अहदेदारों के साथ ये जायज़ा इजलास मुनक़िद किया।
انہوں نے اس موقع پر عہدیداروں کو مختلف ہدایات دیں. وزیر موصوف نے DPR کی تکمیل کے فوری بعد ٹینڈر کا مرحلہ مکمل کرنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ فی الحال 308 کروڑ روپے کے سول کاموں کے لیے ٹینڈر کا عمل آخری مرحلے میں ہے. TNGO کے صدر راجندر نے غریب پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے اور تلنگانہ کی تحریک میں اہم رول ادا کرنے والے ریاستی وزیر سرینیواس گوڑ کے قتل کی سازش کو ظلم سے تعبیر کیا ہے. انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ محبوب نگر کی ترقی میں سرینیواس گوڑ کا اہم رول رہا ہے. انہوں نے اس سازش کے پس پردہ افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایسی کوششوں کی وہ سخت مذمت کرتے ہیں. پولیس کو چاہیے کہ اس سازش کے پس پردہ اصل محرکات کا پتہ چلائے. ప్రయత్నం చేసిరు అని చెప్పి మరి చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఆ అంతకులను ఎక్కడ పట్టుకున్నారో మీ మీడియా అంతా మాకు ఇప్పటికే వివరించింది. మరి ఆ మీడియా పత్రికల ద్వారా కథనాలను చూసి ఇలా తెలంగాణ సమాజం అంతా తలదించుకొని సిగ్గుపడేలా ఇలా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. నిజంగా శ్రీనివాస్ గౌడ్ మీద మీరు పోటీ పడాలనుకుంటే అభివృద్ధిలో పోటీ పడండి. రాజకీయంగా మీరు విమర్శ చేయాలనుకుంటే రాజకీయంగా విమర్శ చేయండి. కానీ ఇలా సమైక్యాంధ్రలో రాయలసీమ ఫ్రాక్షనిస్టులాగా గతంలో ఎన్నడీ లేని సంస్కృతి తెలంగాణ తీసుకురావడానికి తెలంగాణ NGOలుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర జేఏసీగా ఉద్యోగ సంఘాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మీరు పోటీ పడండి. రాజకీయంగా మీరు మీ రాజకీయ ప్రత్యర్థుల మీద మీరు మళ్ళీ గెలవాలనుకుంటే ఇలా గెలవాలని ప్రయత్నం చేయండి. కానీ నిండు ప్రాణాన్ని తీసుకునే విధంగా ఇలా సుపారీలు ఇచ్చి వాళ్ళ ఒక వేరే రాష్ట్రాలలో ఏదైతే వేరే రాష్ట్రాలలో సుపారీలు ఇచ్చి గ్యాంగులు తీసుకొని హత్యలు చేస్తా ఉన్నారో మరి అలా వాళ్ళకు తుపాకులు సమకూర్చి బుల్లెట్లు సమకూర్చి డబ్బులు సమకూర్చి మరి చేయడాన్ని తెలంగాణ NGOలుగా తెలంగాణ TGOలుగా ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీగా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే చెప్పారు, అభివృద్ధిలో పోటీ పడదాం. ఇలా రాజకీయాలు అనేది శాశ్వతం కాదు. రాజకీయాలు ఇలా వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి. ఒకరు ఎన్నికలు అనేది ఒకరు గెలుస్తారు ఒకరు ఓడుతూ ఉంటారు. కానీ ఈ విధమైనది సమాజం సర్వ సమాజం తలదించుకునేలా సిగ్గుపడేలా చేయడం అనేది మరి చాలా దురదృష్టకరం, చాలా అవమానకరం. మేము ఇప్పటికైనా రాజకీయ ప్రత్యర్థులకు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ అభివృద్ధి చేసుకుందామని చెప్పి మనం అందరం పోటీ పడుతూ ఉన్నాం. మరి ఆ రోజు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు జేఏసీలో ఉండి జేఏసీలో చురుకైన పాత్ర పోషిస్తే అప్పుడు కొన్ని దుష్ట శక్తులు ఆయన మీద దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాయి. అదే ధర్మిలో ఈరోజు అభివృద్ధిలో కూడా అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే తెలంగాణ ఉద్యోగ సంఘాలుగా ఇలా యావత్ 33 జిల్లాల ఉద్యోగులు అందరం కలిసి ఇప్పటికే ఈ రోజు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి విధులకు హాజరు కావాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని మేము ఇవ్వడం జరిగింది. మరి దీని తర్వాత ఇప్పటికే మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి గౌరవ మంత్రి మండలికి గౌరవ శాసనసభ్యులకు మాకు మరి ఎంపీలకు మేము రిక్వెస్ట్ చేసినాం. ఆ నిందితులు ఎంతటి వారైనా సరే ఎవరైనా సరే ఈ సమాజంలో వారిని ఉపేక్షించేది లేదు. వారి పట్ల కఠినంగా ఉండాలి, మరి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి వారికి మేము हिंदू फैकल्टी को किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए मुसलमानों ने लाखों रुपए की मदद की. VIPS इंटरनेशनल स्कूल चंद्रायन गुट्टा ब्रांच के फिजिक्स के फैकल्टी V मधुकर के दोनों किडनी फेल हो गए. उनके वालिद ने एक किडनी देने का फैसला किया, जबकि ट्रांसप्लांटेशन के लिए मज़ीद 12 था 15 लाख रुपए का खर्च आयद हो रहा है. VIP ग्रुप ऑफ स्कूल्स के तलबा, वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए 5 लाख रुपए जमा करवाए. 2 लाख रुपए मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर खान, एकलव्य स्कूल स्टाफ ने मज़ीद रकम पर मुश्तमिल चेक भी हवाले किया. उनके ट्रांसप्लांटेशन के लिए मज़ीद 4 लाख रुपए की ज़रूरत है. मगर आप मीडिया को शो करके क्यों कर रहे हैं? ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनका खर्चा और कितना बढ़ता आगे नहीं मालूम है. हम लोग हमारी तरफ से तो 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करें और जो हमारे पेरेंट्स जो डायरेक्ट गूगल पे करे वो 2 से 3 लाख रुपए जो है इनको और भी दूसरी तरीके से हुए हैं, तो 8 लाख रुपए में इनका इलाज नहीं होता. वो जो पहले 3 लाख रुपए करे उसमें से डेली डायलिसिस और रिपोर्ट्स को कई सारे पैसे खर्च हो चुके हैं. तो हमारा एक अंदाज़ा जा रहा है कि इनको 15 लाख रुपए के ऊपर जो है ना एक्सपेंडिचर जाने वाला है. तो उसके लिए हमारी गुजारिश है, इनका गूगल पे का नंबर आप लोग डालिए कि जो है ना जो लोग जो है ना दया दे सकते हैं वो लोग भी डोनेट करें और इनका टारगेट जो है ना इन्हों मुकम्मल सेहतियाब होकर आना
اور بھی دوسرا جو ہے نا یہ وہ ہے کہ ہم وہ لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے نا ہندوستان کو کمیونلزم کی نظر سے دیکھتے، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی کمیونٹی بیسڈ نہیں ہے ہم لوگ. یہاں پہ ہندو ہو مسلم ہو مذہب بعد میں آتا، پہلے ہیومینٹی آتی. ہم جو ہے نا مذہب یا نام دیکھ کے کام نہیں کرتے، یہ ہمارے فیکلٹی ہے، اس کے واسطے جو ہے نا ہم کام کیے. اور یہ بات ایک ایگزامپل ہم دینا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ اپنے معاشرے میں، اپنی کالونی میں، اپنے پڑوس میں، آس میں اگر کہیں پہ بھی کسی کو بھی کوئی بھی مذہب کو کچھ ہوتا تو آپ لوگ ساتھ میں ایک جٹ ہو کے ایک اچھا کام کر سکتے، ایک اچھا نیک کام انجام دے سکتے. اور سب لوگ مل کے کرے تو کام کتنا آسانی سے ہوتا، کسی کے اوپر برڈن نہیں پڑتا اور کسی کی جان بچ سکتی. یہ میسیج ہے. تھینک یو. لاری کی ٹکر کے نتیجے میں اسکول ٹیچر ہلاک ہو گئی. یہ حادثہ الوال میں پیش آیا. پولیس نے بتایا کہ اس ٹیچر کی شناخت درگا کے طور پر کی گئی ہے، جو الوال کے ایک خانگی اسکول میں برسر خدمت تھی. وہ اپنے شوہر نسیمہم کے ساتھ بائک پر اسکول جا رہی تھی کہ الوال پولیس اسٹیشن کے قریب لاری نے ان کی گاڑی کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں دونوں بائک سے گر پڑے اور درگا برسر موقع ہلاک ہو گئی. اس حادثے میں نرسمہم زخمی ہو گیا. اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ روانہ کر دیا. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے لاری کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. مادھاپور میں کل شب ایک ہوٹل کے انتظامیہ کو بعض افراد کے گروپ کی جانب سے دھمکانے اور فرنیچر کو نقصان پہنچانے پر پولیس نے ایک کیس درج کر لیا. پولیس کے مطابق بعض افراد کا گروپ ہوٹل پہنچا اور ان کا جھگڑا ہوٹل کے اسٹاف ارکان سے ہو گیا. پولیس نے کہا کہ اس جھگڑے کے ساتھ ہی ان افراد نے برہمی کے عالم میں ہوٹل کے فرنیچر کو نقصان پہنچایا اور اسٹاف کو دھمکایا. اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے ان افراد کو پکڑ لیا. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا. یوسف گڑھا کرشنا نگر میں واقع ایک خانگی اسکول میں ساتھی طلبہ کے حملے میں 10ویں جماعت کے طالب علم کی موت ہو گئی. اسکول انتظامیہ نے اس کی تردید کی ہے. پولیس ذرائع کے مطابق 15 سالہ سید منصور ساکن یوسف گڑھا کرشنا نگر کے خانگی اسکول میں زیر تعلیم تھے. آج وہ اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ کلاس روم میں کرکٹ کھیل رہے تھے کہ ان کے درمیان جھگڑا ہوا. جھگڑے کے دوران ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ غش کھا کر گر پڑے. لڑکے کو علاج کے لیے دواخانہ لے جایا گیا، تاہم ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا. پتہ چلا ہے کہ بولنگ کے مسئلے پر اعتراض کرنے پر ساتھیوں نے منصور پر حملہ کیا. بنجارہ ہلز پولیس کے عہدیداروں نے بتایا کہ اسکول میں طلبہ کے درمیان کس مسئلے پر جھگڑا ہوا، اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے. اس معاملے میں اسکول انتظامیہ کی کس حد تک لاپرواہ ہے، اس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے. اگر انتظامیہ کی لاپرواہی ثابت ہوتی ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. اسی دوران اسکول پرنسپل انجنی راؤ نے طلبہ کے درمیان آپسی جھگڑے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ طالب علم غش کھا کر گر پڑا تھا، اسے پانی پلایا گیا اور خرابی صحت کی وجہ سے دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی.
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो बच्चा जब गिर गए तो उन्होंने होश में नहीं थे, उन्होंने वहाँ ऑन द स्पॉट हो गए या अनकॉन्शियस हालत में थे, नहीं मालूम किसको भी। बाद में जब पेरेंट्स को फ़ोन करे, आप 2 मिनट में यहाँ रहना बोले कहते उनको। बच्चे के साथ लड़ाई हुई, बच्चा ऐसा गिर गए, होश में नहीं है, वो कैसा कुछ भी इतला नहीं दिया पेरेंट्स को। उन्होंने समझे ऑलरेडी स्कूल में कितने दिन से लड़ाइयाँ चल रहे हैं, इनको बुलाते जा रहे, समझाते जा रहे, और उन बच्चों को भी ये करते जा रहे। बच्चे बोल रहे क्रिकेट खेले, 3 दिन पहले भी लड़ाई हुई, वही लड़ाई फिर स्टार्ट हुई बोले, फिर वही लड़ाई का वजह से ये आज लड़ाई हुई, नहीं दूसरा कोई प्रॉब्लम है नहीं मालूम। टीचर पूरे नीचे थे कहते, नीचे बैठ के टीचर खाना खा रहे थे कहते, बच्चे ऊपर बैठ के खा रहे थे। बच्चों में लड़ाई स्टार्ट हुई, बच्चे लड़ लिए और इतना मैटर हो गया इधर। तो टीचर क्या कर रहे थे, जब आवाज़ आ रहे नीचे पूरे रूमों के सीसी कैमरे ऑन है, तो एक जने भी टीचर इतने जिम्मेदार नहीं है कैमरे में क्या चल रहा है ना क्या नहीं चल रहा देखने। इतने बेहोश हालत में है क्या टीचर? घर वालों को बोला कि समझा, घर वालों को बच्चे जब लड़ ले रहे तो घर स्कूल में मीटिंग चल रहे, बच्चों को समझा रहे। 1-2 बच्चों को ऑलरेडी सस्पेंड करे भी कहते स्कूल से। तो फिर जब भी बच्चों को पूरों के ऊपर नज़र रखना टीचरों की, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल की, स्टाफ की जिम्मेदारी है नहीं है? ऐसा कैसा उन लोग लापरवाही कर रहे? हमारे भी बच्चे वही स्कूलों में पढ़ रहे, फिर हम लोग कैसा बच्चों पे भरोसा करके भिजाना? स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती, बच्चों को अच्छा पढ़ाते, मेंटेनेंस अच्छा होता, प्रिंसिपल अच्छे है, टीचर अच्छे है, स्टाफ अच्छा है, हम लोग कैसा भरोसा करना? हाँ, अगर बच्चे सॉक्स नहीं पहने, सही जूते नहीं पहने, यूनिफॉर्म नहीं पहने तो फाइन डालते, बच्चों की पढ़ाई रोक देते, पनिशमेंट ले देते। अब बच्चे की जान चलेगी, इसकी फाइन कौन भरते? बच्चे की जान लाके देते पेरेंट्स को। अब वो अम्मा को बच्चा होना है, कौन लाके देते? स्कूल के ऊपर कार्रवाई होना, स्कूल के ऊपर कार्रवाई होना, और उन लोग जो भी है, सार की जो भी पोजीशन रहने दो, मैडम की जो भी पोजीशन रहने दो, ये गरीब अम्मा बाबा का इंसाफ होना। एक अजीब व गरीब वाक़े में एक ज़ईफ़ खातून की निगरानी और देखभाल का काम करने वाली खातून ने इस ज़ईफ़ खातून को अंधा बनाते हुए उसके घर में चोरी की वारदात अंजाम दी। ये वारदात नाचारम में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 32 साला भार्गवी का ताल्लुक़ मंचरियाल से है और वो स्नेहापुरी कॉलोनी नाचारम में रहने वाली 73 साला ज़ईफ़ खातून हेमावती की देखभाल का काम करती थी। पुलिस ने कहा कि इसने ज़ईफ़ खातून के आँखों के ड्रॉप्स में टॉयलेट क्लीनर मिला दिया और उसकी आँखों में डाल दिया, जिसके नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गई। बादअज़ां इस खातून के मकान से वो 40,000 रुपये नकद रकम के साथ साथ तिलाई जेवरात लेकर फ़रार हो गई। ज़िला आदिलाबाद में पुलिस ने तकरीबन 3,68,000 रुपये मालियत के ममनुआ गुटखे को जब्त कर लिया। इस मौके पर आदिलाबाद के डीएसपी वेंकटेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसपी की हिदायत पर गांजे गुटखे की स्मगलिंग पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक इत्तला पर टास्क फोर्स और जैनात पुलिस ने जैनात मंडल मुस्तखर के रहने वाले जी प्रमोद नामी शख्स के मकान में गुटखे की मौजूदगी की इत्तला पर तलाशी ली, जिसमें इस गुटखे का पता चला। उन्होंने कहा कि इस मंडल मुस्तखर में पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में ममनुआ गुटखे का पता चला। उन्होंने आवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि गुटखे की वजह से कैंसर होता है, इसीलिए इससे गुरेज की ज़रूरत है। जंग ज़दा यूक्रेन से वापस आने के सिलसिले में वहाँ फंसे हिंदुस्तानी शहरी और दीगर ममालिक के अवाम काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन से रोमानिया के बुखारेस्ट शहर पहुँचे हिंदुस्तानी तलबा ने हिंदुस्तानी परचम अपने साथ लिया था। सरहद उबूर करने के दौरान इन्होंने अपने हाथों में हिंदुस्तानी परचम लिया था, जिससे उन्हें काफ़ी मदद मिली। इन तलबा ने कहा कि बाज़ पाकिस्तानी और तुर्की के तलबा ने भी हिंदुस्तानी परचम थामा ताकि यूक्रेन सरहद के चेक पॉइंट को उबूर किया जा सके। ताहाल हिंदुस्तानी हुकूमत ने 17,000 हिंदुस्तानी शहरियों को यूक्रेन से वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। AIMIM कारवान MLA
कौसर मोहीउद्दीन ने जुमेरात को आसिफ नगर मंडल के एमआरओ के साथ कारवान AKM फंक्शन हॉल में आसिफ नगर मंडल के कल्याण लक्ष्मी के 100 चेक तकसीम किए, जिसमें कारवान कॉरपोरेटर सौम्य यादव, नानल नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर बदरुद्दीन और पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्के कारवान और आसिफ नगर मंडल के 100 कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स को दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर एमआरओ मोहतरमा साहिबा और कारवान कॉरपोरेटर जनाब सौम्य यादव साहब, नाना नगर कॉरपोरेटर जनाब नसीरुद्दीन साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब और मजलिस के तमाम सीनियर लीडर्स जनाब अदर साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब और दीगर सरगर्म कारकुन प्रोग्राम में हिस्सा लिए। मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम कारवान के तमाम मेरे नौजवान भाइयों से और ख़ास तौर से ख़वातीन से अपील करता हूँ कि पिछले 2-3 महीने पहले जो मकानात के पास जो शादियाँ हुए उन तमाम से अपील करता हूँ अपने घर के करीबी मीसाओं पर जाकर ऑनलाइन कराएँ। इंशाअल्लाह 2 अढ़ाई महीने के अंदर आपको जो भी पेंडिंग है उन तमाम शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के इंशाअल्लाह आप तमाम को दिया जाएगा। उसी तरीके से आपके जो भी पेंशन के चाहे वो ओल्ड एज के हो या बेवा के हो, जो भी आसरा हो, जो भी पेंशन के पेंडिंग है इंशाअल्लाह आज सदर मोहतरम की हिदायत पर मैं आज जाकर चीफ सेक्रेटरी साहब से भी नुमाइंदगी किया। वो इंशाअल्लाह जितने भी जो पेंशन है उन तमाम पेंशन को भी आने वाले महीने के अंदर अप्रूव किया जाएगा। इस मीडिया के ज़रिए तमाम से अपील करता हूँ कि अनकरीब में गोलकुंडा और शेखपेट मंडल के भी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी की पेंडिंग है, इंशाअल्लाह उन तमाम मंडल्स के भी दिए जाएगा। और फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि आपके जो भी बस्ती के मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह मुझको और मेरी जमात के सदर मोहतमदी या मेरे कॉर्पोरेटर्स को बताइए, इंशाअल्लाह जो भी मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। शुक्रिया।